Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today is from October-November 2020. It's P6 variant 63 ATP. Okay, so let's begin. Question 1. Some students investigate the transfer of thermal energy from a beaker of hot water. And this is the apparatus they have used. मैं आपको बताती हूँ मेरे पास है क्या. एक beaker है, उसमें lid नहीं है. दूसरा beaker है, उसमें lid है. Then we have a thermometer attached to a clamp. Okay? Next, figure 1.2 shows the reading on the thermometer at the start of the investigation. Record the room temperature shown in the thermometer. ये हमें room temperature बता रहा है. ठीक है, आज हम zoom करते हैं. अब this is हमारे पास ये 20 है. This is 30. So this will be 21, 22, 23, 24. ये 24 से line हो रहा है. So this will be 24. Okay? So we're going to write here. यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 24. 24 is the room temperature. Next, a student pours 100 centimeter cube of hot water into beaker A. This heat records the temperature of the water in beaker A and immediately starts a stop clock. The student records the temperature theta of the water every 30 seconds. His readings are shown in table 1.1. The student repeats the procedure for beaker B. Beaker B is fitted with a lid. मतलब दोनों beakers में गर्म पानी डाला around 100 centimeter cube. A में lid नहीं है, B में lid है. बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस में सॉरी 0 सेकेंड में जैसे ही पानी पोर किया उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है. जो लिड वाला है उसका है टेम्परेचर 85, जो बगैर लिड वाला है उसका है 86. दिस इज एग्जैक्ट उस वक्त जब पानी पोर किया गया एट लाइक 0 सेकेंड्स. फिर हर 30 सेकेंड में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. सो लेट्स फिल इन दिस टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर हमारे पास होता है किस में? टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स होता है. सॉरी टाइम का. टेम्परेचर वी हैव 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस. अब टाइम हमारा कैसे चेंज होता है? पहले 0, फिर 30 सेकेंड्स, 60, 90. आप हर टाइम 30 ऐड कर रहे हो. ठीक है, 90, 120, 150 एंड 180. ठीक है, मेरा 5 थोड़ा 8 जैसा ही लग रहा था. सॉरी 6, 150 एंड 180. Describe precaution that should be taken to ensure that the temperature readings are as accurate as possible in this experiment. तो temperature readings accurate कैसे हो? पहले तो आप मेक श्योर करो कि आप टेम्परेचर जो थर्मोमीटर आप करेक्टली पढ़ लो. तो आप बोलो टेक रीडिंग perpendicular to thermometers scale. ठीक है. नेक्स्ट आप एक और चीज़ भी लिख सकते हो कि stir before और throughout. आप लिख सकते हो stir throughout experiment. अब and लिख दो. मतलब कि एग्जाम्पल अगर ऊपर ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाए और नीचे गर्म है तो टेम्परेचर तो अनइवनली तरीके से लिया जाएगा ना. तो स्टर करने से क्या होता है? हेल्प करता है कि पूरे पानी का टेम्परेचर एग्जैक्ट हो. अब राइट द कंक्लूजन स्टेटिंग हाउ द लिड अफेक्ट्स द कूलिंग ऑफ द वाटर. हमें नज़र आ रहा है इस टेबल के थ्रू कि जिसमें लिड है उसमें पानी का टोटल टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है यहाँ पर 85 से गया है 56 पे, यहाँ पर 86 पे गया है 76 पे, यहाँ हमारे पास अराउंड 10 डिग्रीज गिरा है. यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्रीज गिरा है? अराउंड 30 डिग्रीज गिरा है प्लस माइनस. ठीक है, एवरेज की बात करें तो हम ऑब्वियसली लिखेंगे कि a conclusion stating how the lid affects the cooling of the water. The lid, ठीक है, the lid, what does it do? It leads to beaker B cooling more
slowly. ठीक है. The temperature of the water in each beaker decreases during this investigation. सही बात है, दोनों में पानी का टेम्परेचर कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. Describe one other similarity in the pattern of cooling of water in B and A. ये तो सही बात है कि दोनों में पानी कम हो रहा है. अब हम इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 86 से 83 पे आया, ठीक है, ये 3 डिग्रीज गिरा, फिर ये वापस 3 डिग्रीज गिरा, फिर ये 2 डिग्रीज गिरा, फिर ये 78 से 77 तक ये 1 डिग्री गिरा, फिर ये 1 डिग्री गिरा, फिर ये 0 डिग्री गिरा. यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 85 से 79 तक ये 6 डिग्री गिरा, फिर ये 6 डिग्री गिरा, फिर अराउंड 5 डिग्रीज, अराउंड 4.5 जो भी, अराउंड 4 डिग्रीज, अराउंड 3.5 डिग्रीज. तो ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीसिंग, your cooling rate decreases as the time या temperature falls. As time increases, तो ऐसा लिखें, as time increases या as temperature decreases, cooling rate decreases. ठीक है, ये मेरे पास आ गया, कूलिंग रेट डिक्रीजेस. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, ये हमारे पास है एक्स, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द वाटर इन बीकर ए. अब हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि हमें एक्स ए कैसे निकालना है, ठीक है. एंड ये बता रहा है कि थीटा 0 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर एट टाइम इज इक्वल टू 0. टाइम इज इक्वल टू 0, बीकर ए में हमारे पास क्या था, आई थिंक हमारे पास 85 था. हाँ, बीकर ए एट 0 टाइम इज इक्वल टू 0 हमारे पास 85, एट टाइम इज इक्वल टू 100 हमारे पास है 56.5. तो हम निकालेंगे, हम करेंगे 85, ठीक है, माइनस 56.5 और ऊपर पूरा टोटल टाइम दिया हुआ है जो हमारे पास है 180 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ पर मैं बताया हुआ भी है. तो हम निकालेंगे, यहाँ आंसर आ रहा है 0.158. मेरा 5 पता नहीं क्यों इतना. ठीक है, नेक्स्ट हमें एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बीकर बी भी निकालना है. वापस से वही टेम्परेचर एट 0, टेम्परेचर एट 180 सेकेंड्स, एंड हम इसकी एवरेज कूलिंग रेट निकालेंगे. तो उसका था आई थिंक 86, ठीक है, 0 डिग्रीज पे, एंड 180 डिग्रीज पे था उसका 76 अपॉन 180. तो यहाँ आंसर बन रहा है 0.0556. ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. ये एवरेज रेट ऑफ कूलिंग विदाउट लिड एंड विथ लिड. लिड के साथ एवरेज रेट ऑफ कूलिंग कितना कम हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हुआ है आई गेस. हाँ कि नहीं. The thermal energy transferred from the surface of the water and from the size of the water of the beaker during this investigation. A student suggests that more thermal energy is transferred from the surface of the water than the sides of the beaker. State whether your results support this suggestion. अब ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ ऊपर से ओपन एरिया है, जहाँ पर लिड रखी जाती है, वहाँ से थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र साइड्स से ज़्यादा है. इज़ दैट करेक्ट और नॉट? ऑब्वियसली दैट्स करेक्ट, तभी लिड के होने ना होने से इतना फ़र्क पड़ रहा है. तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट हम करेंगे जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ कूलिंग है, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बी इज़ लेस दैन हाफ ऑफ एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए. जस्टिफिकेशन क्या होगी इस बात की, क्योंकि therefore लिख देते हैं, therefore क्या कहते हैं, हमारा जो सजेशन था, thermal energy is therefore more thermal energy transferred from surface. इसका जस्टिफिकेशन क्या है, is the surface is in contact with
एयर या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट environment. Therefore thermo energy more affected, ठीक है, या transferred from surface, ठीक है. Suggest a change to the apparatus or the procedure to produce a greater difference between XA and XB. मतलब एवरेज ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर दोनों का चेंज करने में हम एक apparatus सजेस्ट करेंगे. तो आप ये लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं beaker to be more insulated lid. अगर लिड ज़्यादा इंसुलेटेड होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप और कम होगा बीकर बी का, उसकी वजह से उसका एक्स बी और कम होगा. इससे क्या होगा, एक्स बी और कम होगा. ये तो आप ये लिख सकते हैं हायर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर. इससे एक्स जो ए है वो और बड़ा होगा क्योंकि इससे और जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप होगा. हमने बताया था ना कि एज टेम्परेचर ड्रॉप कूलिंग रेट डिक्रीज़ कर रहा है. तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कूलिंग रेट उस वक्त ज़्यादा होगा. तो इससे भी एक्स और एक्स ए एंड एक्स बी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट से, ठीक है. एंड we're done with this question, so we're going to move on to question number 2. Some students investigate an electrical circuit containing different combination of resistors. They use circuit A shown in figure 2.1. Circuit A is not shown complete. तो हम ये electrical circuit use कर रहे हैं to investigate the combination of different resistors. On figure 2.1, complete circuit A to show a voltmeter connected to measure the potential difference across resistor X. तो resistor X के across हमें voltmeter लगाना है. Voltmeter हमेशा parallel में लगता है. And an ammeter connected to measure the current in the circuit. Ammeter हमेशा series में लगता है, तो ये तो यहाँ लगेगा, ये तो फिर यहाँ लगेगा, जो आपकी मर्ज़ी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये लेफ़्ट वाली साइड पे लगाया तो यहाँ पर आप बस इसको क्लोज कर दें, ठीक है. A student measures the potential difference across resistor X and the current in the circuit. अभी हमें वोल्टमीटर एममीटर की रीडिंग्स दी गई हैं. Record in the first line of table 2.1 the values V and I shown in the meters in figure 2.2 and figure 2.3. यहाँ पर हमें वही जो वैल्यूज़ ऊपर दिखाई गई हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है, ठीक है. पहले तो हमें पता है कि वोल्टेज होता है वॉल्ट्स में, करंट होता है एम्प्स में, और रेजिस्टेंस के हमें दिया हुआ है ओम्स. तो सर्किट ए में वोल्टेज हमें देखते हैं क्या मिल रही है, ठीक है. अब ये 3.1 3.2 3.3 है, ये 3.5, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक है. अब एमीटर में देखते हैं, ये 8 है, 0.8 है, तो ये होगा 0.9. तो हर यहाँ पर होगा 0.2 0.2 क्योंकि 5 डिफरेंट लाइन्स है हमारे पास यहाँ पर. तो हो जाएगा 0.82. फिर नेक्स्ट वाला होगा 0.84 0.86 0.88 एंड 0.9, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास है 0.82 और दूसरे में हमारे पास 3.3, ठीक है. हम लिख लेते हैं इसको, कहाँ गया टेबल में ना, हाँ. 3.3 वोल्ट्स एंड एम्पियर्स में हमारे पास है 0.82. फिर हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं. हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है V = IR. तो रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I, ठीक है. तो हमारे पास वोल्टेज है 3.3, हम करेंगे 3.3 अपॉन 0.82. आंसर आ रहा है 4.02. नेक्स्ट वाला हम करेंगे 2.1 अपॉन 0.54. तो आंसर आ रहा है 3.896.
नेक्स्ट हम करेंगे 1.1 अपॉन 0.39 और रेजिस्टेंस आ रही है 4.10। हमारी वैल्यूज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं रेजिस्टेंस की, देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास करंट भी डिक्रीज हो रहा है, करंट और वोल्टेज दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। क्यों? V इज इक्वल्स टू IR। अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। द स्टूडेंट नाउ कनेक्ट्स टू 5 ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज बिटवीन P एंड Q। ये हमें दिखा रहा है B का, B में, A में हमने देखा P और Q के बीच में, ये A है, ठीक है, A P और Q के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टर है। फिर ये बता रहा है कि B में इसने 2 5 ओम के रेजिस्टर्स लगा लिए और C में इसमें 3 5 ओम के रेजिस्टर्स लगाए, तो ये हमारे पास सर्किट A B C मिल गया। इसमें सिर्फ PQ में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जो 5 ओम की रेजिस्टेंस। हमें बताया गया शी मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द सर्किट्स। कंप्लीट द हेडिंग्स, ये हमने कर लिया, हमने वैल्यूज़ निकाली, सारी रेजिस्टेंस की भी वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, A student suggests that the values of R should be the same। हमने ये चीज़ की है कि ये सच में सेम हुआ है। State whether your results support this suggestion. Justify your statement by reference to value from your results. तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी स्टेटमेंट इज agreeing with the suggestion. Will actually be agreeing with the suggestion, right? So agree with suggestion, yeah, अब इस बात की हम जस्टिफिकेशन किस तरीके से देंगे? जस्टिफिकेशन हम लिखेंगे कि वैल्यूज ऑफ आर, मैं लिख देती हूँ, हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है, वैल्यूज ऑफ आर आर within limits of experimental accuracy। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी मार्किंग स्कीम के बारे में याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हर टाइम इस तरीके की एक स्टेटमेंट होगी। आई नो इट डजंट साउंड राइट कि आप ओ लेवल्स में बैठे हैं, आप रेक्टिफिकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं, बट मार्किंग स्कीम ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो दिस इज लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स, आपको जस्ट यू जस्ट हैव टू लाइक रिमेंबर द मार्किंग स्कीम। ठीक है, विद आप लिखेंगे कि वैल्यूज ऑफ आर are within limits of experimental accuracy with the values that we have seen of R। ठीक है, with comparative values seen। ठीक है, the results must be checked by using a different circuit। On figure 2.6, one other arrangement of 3 5 ohm resistors between terminal P and Q। अब यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं? या तो फिर आपको 5 ओम के 3 रेजिस्टर्स दिखाने हैं लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट में। पहले हमारे पास इस तरह थे ना, तीनों सीरीज में थे, 5 ओम 5 ओम 5 ओम। अब हमें अलग अरेंजमेंट दिखाना है। आप बस 2 ऑप्शंस हैं, मैं दोनों जो ना साइड में बना देती हूँ, मतलब हाँ बीच में। ठीक है, या तो फिर आप इस तरह करें 5 ओम, ठीक है, तीनों हमारे पास हो क्या कहते हैं पैरेलल है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम। ठीक है, इसको आप इस तरह कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। या तो फिर आप इस तरह करें कि एक साइड पे एक 5 ओम हो और दूसरी साइड पे 2 5 ओम हो, इस तरह। समझ आ रही है? तो यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये यहाँ से इस तरफ जाएगा। या आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए। A student wants to determine R by using a variable resistor to vary the current in the circuit. Draw the circuit symbol for a variable resistor। Variable resistor को आप rheostat भी बोलते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। Explain one advantage of using a variable resistor to vary the current compared to the procedure carried out in B and C। B and C में क्या हुआ कि हमने करंट इस तरीके से चेंज किया कि हमने
क्या हुआ कि मैं वापस बताती हूँ, किसी को समझ नहीं है। हमारे पास एक 5 ओम का रेजिस्टर था पी और क्यू के बीच में, फिर हमने इसमें और डाले, फिर एक और डाला। इस तरीके से हमने बेसिकली रेजिस्टेंस को चेंज ही किया ना, कि उसमें करंट चेंज हुआ जिसकी वजह से। और फिर जब करंट चेंज हुआ तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो भी चेंज हुई। तो इसमें हम इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग 5 ओम के रेजिस्टर, हम इसमें रियोस्टाट लगा दें और उसकी रेजिस्टेंस चेंज करके फिर हम करंट की डिफरेंट रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कैन obtain more values easily, ये एक हो गया। हम लिख सकते हैं can obtain continuous set of values of current, ठीक है, ये voltage जो भी। Okay. A student investigates the image produced by a converging lens. She uses the apparatus shown in figure 3.1. तो हमारे पास यहाँ पर converging lens है, जो हमारा illuminated object है, ये हमारा object के तौर पे काम कर रहा है, जो light है, और उसके साथ यहाँ पर एक कट आउट ट्रायंगल बना हुआ है बोर्ड में, तो हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। U is a distance between object and lens. यहाँ पर हमारे पास illuminated object है, हमें इसकी हाइट मेजर करनी है। इट्स ड्रॉन टू इट्स फुल साइज, मतलब इसका एक्चुअल साइज इतना ही है। तो अगर आप यहाँ पर रूलर प्लेस करें और इसकी लेंथ निकालें तो आपकी निकल रही है एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर्स, एग्जैक्ट 2। तो आप हमेशा यूजली दो सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं, तो आप करते हैं 2.0। तो U हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। The screen is moved until a sharp image of the illuminated object is formed. यहाँ पर हमारे पास image नजर आ रही है, ठीक है। Mission record the first line of the table 3.1. The height HI of the image as shown in figure 3.3. मतलब कि हम जो ना HI की यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इस HI की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल रही है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल रही है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हम W निकाल रहे हैं। W हम कैसे करते हैं, HO अपॉन HI। HO हमारा क्या था, HO था हमारा 2, दूसरा होगा 2 अपॉन 3.7, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.54, ठीक है। The student repeats the process for U is equals to 30, 40, 50 and 60 centimeters. Her results are shown in the table. मतलब हम यहाँ पर जो U हमारी distance है between the object and the lens, उसको हम increase कर रहे हैं हमारी U को, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा जो हाइट है, जो इमेज की हाइट है, वो चेंज हो रही और W चेंज हो रहा है। W विच इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि पहले हम टेबल देख के कुछ रिलेशनशिप बता दें। पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी जो इमेज की लेंथ है या इमेज की हाइट है वो कम हो रही है। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंस equals to decrease in height of image equals to increase in W, क्योंकि W increase होता जा रहा है जैसे हम नीचे जा रहे हैं। U क्या हो रहा है, increase, HI हो रहा है decrease और W हो रहा है increase। अब हमें ग्राफ बनाना होगा of U against W। U हमारे पास है distance between object and graph, तो हमारे पास y एक्सिस में आ रहा है U इन सेंटीमीटर्स एंड x एक्सिस में हमारे पास है W। U की वैल्यू है हमारी 20 से लेकर 60 तक जा रही है, तो हम करेंगे 0, 10, 20, 30, 40,
पास आ गया 40, 50 एंड 60। और हम W में करेंगे, W में हमारे पास 0.54 से लेके 3.3। अब जब यहाँ पर W की बात की जा रही है तो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। पहले तो आप हमेशा अपने जो ना जो आपके यहाँ पर स्केल्स हैं उसको आप पेंसिल में फिल किया करें, सो यू डोंट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए W की वैल्यूज़ क्या है, 0.54 से 3.3, ठीक है। 0.54, 3.3, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.53, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3.25, which is less than 3.3। अब अब हमें अपना ग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट ये यूँ करके हम यूँ करते हैं, मतलब कि हम 0 पर शुरू नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हम शुरू करें 0.5 से। समझ आएगी सबको? तो यहाँ करेंगे 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। पहले हमारे पास 20 पे है, जब U 20 है तो W है 5.4। 20 पे, एक मिनट, 20 यहाँ पर है और ये 0.5, ये 0.56 है, सॉरी ये 0.6 है, तो हमारे पास है 0.54, तो आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट तौची पे हमारे पास है 1.3, तौची यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है 1.1, 1.2, 1.3, ये ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2, 2.9, 3.3, ठीक है। 2, 2.9 and we have 3.3, 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। Okay, let's make our line of best fit। आपको as many points as possible अपनी लाइन में इंक्लूड करने हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफ़ी दूर है, तो हम इसके बीच में से लाइन लेके जाएंगे कि दोनों में से, दोनों के बीच से जाएंगे। सो लेट्स डू दैट। ये हमारी लाइन बन गई। अब मैं इसको थोड़ा नीट करूँगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब the gradient of the line of is numerically equal to the focal length। अब हमें gradient निकालना है, ठीक है। gradient किस तरह निकालते हैं? तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं पहले कुछ, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपना gradient निकालने के लिए। I'm doing it in a green, so everybody is sure कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने ट्रायंगल बना लिया। मैंने बहुत सोच समझ के ट्रायंगल बनाया है ये वाला। इसकी रीज़न क्या है कि देखें यहाँ पर ये एक फुल वैल्यू पे आएगा नीचे, ठीक है। नीचे यहाँ पर फुल वैल्यू पे आएगा एंड इस तरफ मैं बल्कि आपको इसको चेंज कर देती हूँ ताकि ज़्यादा आसानी हो। हम इसको यहाँ पर 3 पे बना देते हैं एग्जैक्ट, ताकि आसानी हो। ओके, हमें निकालनी है y2, y1, x2, x1 की वैल्यूज़। तो हम पहले अपना पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अपना 1 पॉइंट है हमारा, ये है 0.2। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 है यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू है 0.9 और y की वैल्यू है यहाँ पर 25, ठीक है। जो हमारा 0.2 है अब, ठीक है,
इसकी पहले x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है यहाँ पर 53, ठीक है। तो हमारा पहले हम करते हैं y2 माइनस y1, तो हम करेंगे 53 माइनस 25 अपॉन x2 हमारा 3 माइनस 0.9। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमें ग्रेडियंट मिलेगा और हमारा ग्रेडियंट ही हमारी फोकल लेंथ है। सो लेट मी जस्ट फाइंड दैट आउट। 53 माइनस 25 अपॉन 3 माइनस 0.9। आंसर आ रहा है हमारा, मेरा आ रहा है 13.33। हम जिसको राइट 13.3। ऑब्वियसली आपका आंसर मुझसे डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ग्रेडियंट की एक रेंज दी जाती है कि अराउंड मतलब हमें दी हुई है यहाँ पर। मतलब अगर मार्किंग स्कीम चेक की जाए तो ग्रेडियंट इसकी रेंज है हमारे पास 12 से लेके 15.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डाल दो, ठीक है। ये The student decides to extend the experiment using larger values of U. Explain why this could produce less reliable values of W. अब हमें ऊपर नज़र आ रहा है कि जैसे U बढ़ता जा रहा है, W क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ। तो हम लेकिन आप इसका चेंज देखें, ठीक है। यहाँ पर 0.54 से 1.3 काफ़ी बड़ा चेंज है, 1.3 से 2 भी बड़ा चेंज है, यहाँ से बड़ा चेंज है, यहाँ से थोड़ा कम चेंज है, ठीक है। यहाँ पर जो ना बस 6 वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हमें बोला जा रहा है, ठीक है, सॉरी, कि हम U की लार्जर वैल्यूज़ करें तो इससे W के लिए लेस रिलायबल वैल्यूज़ क्यों होंगी? क्योंकि U जब बढ़ेगा तो HI क्या हो रहा है, HI कम हो रहा है, HI बहुत कम हो रहा है, समझ आ रहा है आपको, 0 पॉइंट में जा रहा है। और अगर HI 0 पॉइंट समथिंग समझे जाए, 0 पॉइंट अगर समझे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाए 0.3, फिर आ जाए 0.1, फिर आ जाए 0.001, 0.000 इस तरह करके, तो ये HI की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है एज U इंक्रीसेस, ठीक है। इसकी वजह से W की वैल्यूज़ इम्परफेक्ट आएंगी। तो हम लिख लेंगे एक्सप्रेशन क्या होगी हमारी, HI, सॉरी तो बड़ा सा I लिख दिया, HI values become very small, leads to higher percentage of uncertainty in W values, ठीक है। इसकी इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि हम बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम U तो इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि HI छोटा नहीं हो, ठीक है। इमेज मतलब बड़ी प्रोड्यूस हो, तो बड़ी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारी होगा यूज़ और हम ये भी लिख सकते हैं कि हम अपने इमेज की एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम ग्राफ पेपर यूज़ कर लें, ताकि इमेज की जो हाइट निकल रही है, जो स्क्रीन जिस पे इमेज बन रही है, हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकें। So HI is very accurate, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4. A student investigates the factors that affect the average speed of water falling in average speed of a ball falling in water, ठीक है। बॉल है, पानी में गिर रहे हैं, हम इनकी देखेंगे कि क्या चीज़ इन बॉल्स की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। Plan an experiment which will enable him to investigate the effect of one factor on the speed at which a ball of modern clay falls in the water. ये हमारे पास apparatus provided है। हमारे पास modeling clay है which can be balled into different ball sizes. हमारे पास metal bearings है which can be embedded in the modeling clay. ये क्या होगा, increase in mass करने के लिए होगा। A long transparent tube closed at one end and a supply of water.
In your plan, you should clearly state the factor to be investigated. अब यहाँ पर हम 2 factors investigate कर सकते हैं. पहला mass, ठीक है. मतलब मेरे पास समझो 3 balls हो, इन सब की जो वॉल्यूम या डायामीटर है सही है, मास विथ सेम डायामीटर या वॉल्यूम, ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि जो ये तीनों बॉल्स हैं सबकी डायामीटर वॉल्यूम सेम है, लेकिन इनका मास अलग है. किसके थ्रू? मेटल बेयरिंग्स के थ्रू. सर जब हमने यहाँ 2 मेटल बेयरिंग्स डाल दी, यहाँ हमने 4 मेटल बेयरिंग्स डाल दी, पहले वाले में 0 मेटल बेयरिंग्स, तो इसमें वॉल्यूम और डायामीटर सेम है लेकिन मास चेंज हो रहा है. दूसरा, मास इन सबका क्या हो, मास सबका सेम हो लेकिन डायामीटर और वॉल्यूम डिफरेंट हो. ये क्या होगा हमारे पास? ये मेरे पास 3 बॉल्स हैं, डायमीटर और वॉल्यूम अलग है लेकिन मास सेम हो. किस तरह? हालांकि ये बड़ा है लेकिन इसका और सबसे छोटे वाले का मास सेम हो. किस तरह? समझे, सबका मास है 5 kg, ठीक है. अब क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है, इसका ज़्यादा मटेरियल आया है कि नहीं? ज़्यादा मटेरियल आया, इसमें कम मटेरियल आया, इसमें सबसे कम. तो इसका मास और इसका मास हम सेम कैसे रखेंगे? इसमें हम मेटल बेयरिंग्स डाल देंगे. समझ आ रही है आपको? इसमें क्या होगा? इसमें होगा हम, इसमें हमारा फैक्टर नंबर 2 में है हमारा वॉल्यूम या डायमीटर. इसमें क्या होगा? सेम मास. ये 2 फैक्टर हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. अब और एपरेटस क्या चाहिए? हमें चाहिए होगा क्या कहते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं आकर. तो हमने पहले तो हम फैक्टर इन्वेस्टिगेट हम लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई चूज़ के सबका मास सेम हो, दैट्स ईजियर, ठीक है, दैट्स वे ईजियर टू कंडक्ट. तो हम पहले लिखते हैं फैक्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज मास. नेक्स्ट, लिस्ट एनी एडिशनल एपरेटसेस नीडेड. और क्या एपरेटसेस चाहिए होंगे हमें? हम लिखेंगे क्या कहते हैं, पहले तो हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगा, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि स्पीड ढूंढ रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द बॉल. स्पीड ढूंढेंगे तो डिस्टेंस हमें पता है, या डिस्टेंस भी लिख देते हैं. हम लिख देते हैं मीटर रूल, मीटर रूल लिख देते हैं ताकि हमें डिस्टेंस पता हो. स्पीड एंड हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिएगा, तो आप बस बैलेंस लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. Okay, next. State any key variables to be kept constant. ठीक है. पहले तो ठीक है, हम क्या कांस्टेंट रखेंगे? हम कांस्टेंट रखेंगे बॉल डायामीटर या वॉल्यूम, क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि बॉल डायामीटर सेम, ठीक है. डिस्टेंस from which it's dropped, it's की बात हो रही है यहाँ पर बॉल की, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आप हमें मेथड बताना है, ठीक है. पहले तो हम अपना डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे, ठीक है. मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देती हूँ. हमारे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है. अब मेटल बेयरिंग्स है, अब यहाँ लिख सकते हैं मेटल बेयरिंग, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी में ये गिर रहा है, आगे नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बॉल फॉलिंग इन वाटर. तो यहाँ पर आपका पानी है, ट्यूब है जिसमें आपका एक साइड बंद है, पानी है, और यहाँ पर आपका मीटर रूलर प्लेस्ड है, ठीक है. आप उसको लेबल कर दें ट्यूब विथ वाटर, ठीक है. बल्कि इसको थोड़ा बड़ा बना देते, ज़्यादा आसानी होगी.
tube with water, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी, जैसे समझो बॉल आपने यहाँ छोड़ा, ठीक है, यहाँ से उसने यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस हमने मेजर की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको हम टाइम के साथ वो करेंगे और हमें स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो मेथड बताते हैं हम पहले। तो मेथड, ओके, form different balls with same volume but different masses using what? Using our metal bearings. अगर आप ऐसे बोल रहे होते हैं कि हम वॉल्यूम और डायमीटर चेंज करें लेकिन मास सेम हो, तो उसमें भी आप ले लेते हैं फॉर्म डिफरेंट बॉल्स विद डिफरेंट वॉल्यूम बट सेम मासेस यूजिंग मेटल बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ड्रॉप ऑल बॉल्स वन एट अ टाइम from same distance above water and time them all to reach a specific distance. Then use these values to find each speed, ठीक है। मतलब समझा आपने, यहाँ पर डिस्टेंस चूज़ की है इतनी, जैसे मैंने बताया था। अब हर बॉल को इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने का हम टाइम नोट डाउन करेंगे और उससे हम सबकी स्पीड निकालेंगे, हाँ कि नहीं। सो हमने मेजर कर दिया एपरेटस क्या है, ये वो, ठीक है। अब हम carry the investigation including the measurements to be made and any precautions. measurements हमने लिख दिया है। आप और चाहें तो आप और चीज़ें लिख सकते हैं, आप हर चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आप लिखें कि यूज़ स्टॉप वॉच टू फाइंड टाइम, या ये या वो, इस तरह करके, ठीक है। प्रिकॉशंस आप लिखें कि प्रिकॉशंस आप लिख सकते हैं कि रिपीट, प्रिकॉशंस आप लिख सकते हैं रिपीट टाइम टेकन फॉर ईच बॉल टू ट्रैवल एंड यूज एवरेज वैल्यू टू फाइंड स्पीड। इसके अलावा तो कोई ऐसी यूजुअल प्रिकॉशन नज़र नहीं आ रही, हाँ कि नहीं। एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। मैंने बताया हुआ कि डिस्टेंस फिक्स्ड है हमारी, उसमें टाइम हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है क्या नहीं, ठीक है। हमने ये भी लिखा हुआ है रिपीट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, अच्छा ये लिख देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, राइट। तो हमें ये नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस। पहले तो हम कंपेयर करेंगे टाइम को, ठीक है, हमारे मास के साथ या तो फिर स्पीड, जो भी। कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन टू कवर chosen distance या
comparison of speed with mass of ball. Form a graph of speed versus mass to find relationship. और इसके साथ we're done with variant 62. And if anybody has any queries, please mention it down in the comments below. I will try my best to get back to you. Thank you so much for watching our video today. And inshallah, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.